ناظرین آداب، اردو خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں اسماعیل ریحان۔ ڈالتے ہیں سرخیوں پر ایک نظر۔ پورے ملک میں بے روزگاری کا عروج، پونچھ میں انتخابی ریالی سے راہل گاندھی کا خطاب۔ بی جے پی اور آر ایس ایس پر ملک میں نفرت اور تشدد پھیلانے کا لگایا الزام۔ چائلڈ پورنوگرافی دیکھنا، شائع کرنا اور ڈاؤن لوڈ کرنا پاکسو ایکٹ کے تحت قابل سزا جرم، سپریم کورٹ کا اہم فیصلہ، مدراس ہائی کورٹ کے فیصلے کو کیا منسوخ۔ سلطان پور ڈکیتی کیس میں ایک اور انکاؤنٹر، اکھلیش نے انوج پرتاپ سنگھ کی موت پر کیا غم کا اظہار، کہا بی جے پی انتخابات میں ہار کا لے رہی ہے بدلہ۔ ہریانہ میں ظلم کرنے والوں کو سبق سکھانے کا وقت آ گیا، انتخابات میں بی جے پی کی ہرانے کا کیا عزم، متحدہ کسان مورچہ اور کسان مزدور مورچہ کا مشترکہ بیان۔ اس خبرنامے کے پیش کردہ ہے۔ زندگی انمول ہے اور اس کی حفاظت ہمارا فرض، اور ہم اپنے فرض کو نبھاتے ہیں ذمہ داری سے۔ مسلم جنرل ہاسپٹل اب آپ کے تمام بیماریوں کا علاج ایک ہی چھت تلے۔ ہمارے ماہر ڈاکٹرز کی ٹیم اور اعلیٰ تربیت یافتہ اسٹاف ورلڈ کلاس ہیلتھ ٹیکنالوجی کے ساتھ 24 گھنٹے ایمرجنسی خدمات بھی موجود۔ کارڈیولوجی، ڈائبٹالوجی، ڈرمٹالوجی، انڈوکرینالوجی، پلمونالوجی، نیورولوجی، نیورولوجی، آرتھوپیڈکس، پیڈیاٹرکس، ای این ٹی جیسی اور بھی سروسز بھی موجود ہیں۔ ہر طرح کے اسکینز اور ٹیسٹ کے لیے ایڈوانس لیبارٹریز بھی مناسب قیمتوں پر دستیاب ہے۔ آپ کی بہتر صحت ہماری پہلی ترجیح۔ مسلم جنرل ہاسپٹل، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اب خبریں تفصیل سے۔ لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے کہا کہ بی جے پی آر ایس ایس پورے ملک میں نفرت اور تشدد پھیلا رہے ہیں۔ وہ صرف نفرت پھیلانا جانتے ہیں اور ان کی سیاست نفرت کی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ نفرت کو نفرت سے ختم نہیں کیا جا سکتا بلکہ محبت سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ جموں و کشمیر کو ایک بار پھر ریاست کا درجہ دیا جائے۔ ہم ان پر یہ کام کرنے کے لیے مزید دباؤ ڈالیں گے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو ہم کریں گے۔ مودی جی نے پورے ملک میں بے روزگاری پھیلا دی ہے۔ مودی نے اپنے دوستوں سے ہزاروں کروڑ روپے معاف کرائے تھے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنی حکومت چلائیں، لیکن آپ کی حکومت دہلی سے چلتی ہے، آپ کی حکومت شری نگر اور جموں سے چلنی چاہیے۔ وہ ہمیشہ تقسیم کرنے کا کام کرتے ہیں اور یہی انہوں نے یہاں کیا ہے۔ وہ ہمارے پہاڑی بھائیوں اور گجر بھائیوں کو آپس میں لڑاتے ہیں۔ ہمارے لیے سب برابر ہیں اور ہم کسی کو پیچھے نہیں چھوڑیں گے۔ ہم سب کو پیار کے ساتھ لے کر چلیں گے۔ آپ ہمارے امیدواروں کو کامیاب بنانے کے لیے کام کریں۔ بچوں سے متعلق فحش مواد کے معاملے پر سپریم کورٹ نے بڑا فیصلہ سنایا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ایسے مواد کو دیکھنا، شائع کرنا اور ڈاؤن لوڈ کرنا جرم ہے۔ فیصلہ سناتے ہوئے سپریم کورٹ نے اس طرح مدراس ہائی کورٹ کے فیصلے کو منسوخ کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ میں اس کیس کی سماعت چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ، جسٹس جے بی پارڈیوالا اور جسٹس منوج مشرا کی بینچ نے کی۔ عدالت نے مرکزی حکومت سے کہا کہ وہ چائلڈ پورنوگرافی کے بجائے بچوں کی جنسی استحصال اور بدسلوکی کے مواد کی اصطلاح استعمال کرے۔ جسٹس جے بی پارڈیوالا نے متفقہ فیصلے میں مدراس ہائی کورٹ کے فیصلے کے بارے میں کہا کہ آپ نے حکم میں غلطی کی ہے، لہٰذا ہم ہائی کورٹ کے حکم کو منسوخ کرتے ہوئے کیس کو واپس سیشن کورٹ بھیجتے ہیں۔ در حقیقت مدراس ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ صرف بچوں سے متعلق فحش مواد کو ڈاؤن لوڈ کرنا یا دیکھنا پاکسو ایکٹ یا آئی ٹی ایکٹ کے تحت جرم کے دائرے میں نہیں آتا ہے۔ اس بنیاد پر مدراس ہائی کورٹ نے اپنے موبائل فون میں چائلڈ پورنوگرافی مواد رکھنے کے الزام میں ایک شخص کے خلاف جاری کیس کو منسوخ کر دیا تھا۔ آپ کو بتا دیں کہ بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی کئی تنظیموں نے مدراس ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو نے اتر پردیش کے سلطان پور میں ڈکیتی کیس میں ایک اور انکاؤنٹر پر رد عمل ظاہر کیا ہے۔ سلطان پور ڈکیتی معاملے میں پہلے انکاؤنٹر پر سوال اٹھانے والے اکھلیش نے انوج پرتاپ سنگھ کی موت پر غم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے یوگی حکومت پر سوال اٹھائے ہیں۔ اکھلیش نے سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر لکھا، کمزور ترین لوگ انکاؤنٹر کو اپنی طاقت سمجھتے ہیں، کسی کا فرضی انکاؤنٹر ناانصافی ہے۔ ایس پی چیف نے لکھا کہ تشدد اور خون سے اتر پردیش کی شبیہ کو خراب کرنا مستقبل کے خلاف ایک بڑی سازش ہے۔ آج کے حکمران جانتے ہیں کہ وہ آئندہ کبھی دوبارہ منتخب نہیں ہوں گے، اس لیے وہ اتر پردیش میں ایسی صورتحال پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ نہ کوئی اتر پردیش میں داخل ہو اور نہ ہی سرمایہ کاری کرے گا۔
लोक सभा इंतखाबात में उत्तर प्रदेश के बाशऊर लोगों ने जिस तरह बीजेपी को शिकस्त दी, बीजेपी इसका बदला ले रही है। उन्होंने लिखा, जिनका अपना कोई मुस्तकबिल नहीं होता वो मुस्तकबिल को खराब करते हैं। अनुज के वालिद ने इनकाउंटर पर रद्द अमल में कहा कि अखिलेश यादव चाहते थे कि ठाकुरों का भी इनकाउंटर हो, उनकी ख्वाहिश भी पूरी हो गई। अनुज की बहन ने कुछ दिन पहले कहा था कि मेरा भाई सूरत में है और उसने चोरी नहीं की है। यूपी तक को दिए गए इंटरव्यू में अनुज की बहन ने कहा था कि हमारे भाई का इनकाउंटर हो सकता है। मुत्तहिदा किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले किसानों ने इतवार को हरियाणा के पेपली में किसान महापंचायत की और लोगों से आइंदा हरियाणा असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को हराने की अपील की। दोनों किसान तंजीम फसलों के लिए कम से कम हिमायती कीमत की कानूनी गारंटी समेत उनके मुतालबात को कबूल करने के वास्ते हुकूमत पर दबाव बनाने के लिए दिल्ली चलो मार्च की क़ियादत कर रहे हैं। मुजाहिरीन किसान 13 फरवरी से पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं, जब सलामती दस्तों ने उनके मार्च को रोक दिया था। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के किसानों ने पेपली में किसान महापंचायत में हिस्सा लिया और अपने मुतालबात की हिमायत में 3 अक्टूबर को मुल्क भर में रेल रोको तहरीक करने का भी फैसला किया। किसान रहनुमा सरवंत सिंह पंढेर ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि हरियाणा में बीजेपी हुकूमत के जरिए किसानों पर किए गए मजालिम का बदला लेने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि अब किसान बदला लेंगे। हरियाणा की बीजेपी हुकूमत पर किसानों के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल का इल्जाम लगाते हुए उन्होंने कहा कि हम हरियाणा में बीजेपी की शिकस्त में अहम किरदार निभाएंगे और किसानों के खिलाफ किए गए जुल्म का हिसाब लेंगे। मुत्तहिदा किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के जरिए जारी एक मुश्तरका बयान के मुताबिक किसान रहनुमाओं ने हरियाणा के लोगों से वोट देने से पहले यह सोचने की अपील की कि मौजूदा हुकूमत ने गुज़िश्ता 10 वर्षों में किसानों के लिए क्या कुछ किया है। हैदराबाद में एनआईए के अहदेदारों ने दाइश के पुणे मॉड्यूल में काम करने के इल्ज़ाम में एक नौजवान की तलाश में एक मकान पर धावा किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शहर के सईदाबाद में वाक़ एक अपार्टमेंट में एनआईए के अहदेदारों ने अचानक धावे किए और इन धावों में अहम दस्तावेजात जब्त किए जाने की इत्तला है। बताया गया है कि जारिया साल अगस्त में एनआईए के अहदेदारों ने दिल्ली में शिद्दत से मतलूब रिजवान अब्दुल को गिरफ्तार किया था और रिजवान पर इल्ज़ाम है कि उसके दाइश के साथ मुबैना ताल्लुकात हैं और वह दाइश के पुणे मॉड्यूल में काम कर चुका है। ज़राए ने बताया कि एनआईए को इस बात का पता चला कि रिजवान कुछ अरसे तक हैदराबाद में क़याम पजीर था, जिस पर एनआईए की टीम ने आज सईदाबाद के एक अपार्टमेंट में तलाशी मुहिम चलाई। बताया गया है कि मरकजी वजारत दाखिला ने रिजवान पर 3 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद मामले पर तनाज़ुए के दरमियान हुकूमत ने उसकी जांच के लिए अब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी की तश्कील दी है। हुकूमत के जरिए तश्कील एसआईटी की निगरानी इंस्पेक्टर जनरल या उसके ऊपर की सतह के अफसर करेंगे। एसआईटी सभी वजूहात की जांच करेगी, जिसमें इक़्तिदार का गलत इस्तेमाल भी शामिल है। जांच के बाद रिपोर्ट हुकूमत को सौंपी जाएगी। वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि हुकूमत इस सिलसिले में सख्त कदम उठाएगी जिससे लड्डू में मिलावट जैसे मामले दोबारा पेश ना आएं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ज़ाब्तों के मुताबिक घी सप्लायर्स के पास कम से कम 3 साल का तजुर्बा होना चाहिए, लेकिन जगन मोहन रेड्डी हुकूमत ने इसे घटाकर 1 साल कर दिया। नायडू ने यह भी कहा कि सप्लायर्स के लिए ज़रूरी टर्न ओवर को भी 250 करोड़ रुपए घटाकर 150 करोड़ रुपए कर दिया गया। उन्होंने सवाल किया कि 319 रुपए फी किलो खालिज घी कैसे दस्तयाब हो सकता है, जबकि पाम ऑयल भी इससे महंगा है। इस दौरान आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक खत लिखकर चंद्रबाबू नायडू के तिरुमला तिरुपति देवस्थानम टीटीडी पर लगाए गए इल्जामात पर फौरी कार्रवाई करने की दरख्वास्त की है। नायडू ने अपने हालिया बयान में तिरुपति के प्रसाद लड्डू की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले घी की खालिसियत पर सवाल उठाए थे, जिसे जगन ने गैर जिम्मेदाराना और सियासी तौर पर मुतहर्रिक बयान करार दिया है। जगन ने कहा कि नायडू का यह बयान न सिर्फ करोड़ों हिंदू भक्तों के जज्बात को ठेस पहुंचा रहा है, बल्कि आलमी शोहरत याफ्ता टीटीडी की पाकीज़गी पर भी सवाल खड़ा कर रहा है। उन्होंने वजाहत की कि टीटीडी में प्रसाद तैयार करने के लिए सख्त मेयार और जांच के तरीके अपनाए गए हैं, जिनमें ई टेंडिंग, मोतबर लैब टेस्ट और कई सतहों की जांच शामिल हैं। उनका कहना था कि टीडीपी के दौरे हुकूमत में भी यही मेयार नाफिज थे। जगन ने तशवीश का इजहार किया कि इन झूठे इल्जामात से टीटीडी की साख मुतासिर हो सकती है और भक्तों का एतमाद भी कमज़ोर हो सकता है। उन्होंने वज़ीर आज़म मोदी से मुतालबा किया कि वो नायडू को उनकी हरकत के लिए फिटकार लगाएं और सच्चाई को वाज़ेह करें ताकि भक्तों का एतमाद बहाल हो सके।
जम्मू और कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने ऐलान किया कि वो महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में अपोजिशन महाविकास अघाड़ी MVA के लिए मुहिम चलाएंगे। मलिक ने यह दावा किया कि इस इंतखाब में हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी BJP का सफाया हो जाएगा। सत्यपाल मलिक, जिन्होंने जम्मू और कश्मीर का खुसूसी दर्जा खत्म करने में अहम किरदार अदा किया था, उन्होंने यह बयान शिवसेना UBT के रहनुमा और महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला उद्धव ठाकरे के घर पर उनसे मुलाकात के बाद दिया। मलिक ने कहा कि BJP को इस इलेक्शन में न सिर्फ बड़ा नुकसान होगा बल्कि पार्टी का मुकम्मल सफाया भी हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि उद्धव ठाकरे इस इलेक्शन में कलीदी किरदार अदा करेंगे। महाराष्ट्र में 288 रुकनी असेंबली के लिए नवंबर में इंतखाबात मुतवक्के हैं। रियासत में हुक्मरान इत्तेहाद, जिसे महायुति के नाम से जाना जाता है, उसमें वजीर आला एकनाथ शिंदे की क़ियादत वाली शिवसेना BJP और अजित पवार की क़ियादत वाली नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP शामिल हैं। मलिक ने मजीद कहा कि वह MVA को मुकम्मल हिमायत देंगे और इसके लिए मुहिम भी चलाएंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि महाराष्ट्र का असेंबली इलेक्शन मुल्क के सियासी मंजरनामे पर अहम असर डालेगा और उसके नताइज BJP के सियासी ताबूत में आखिरी कैल साबित होंगे। दिल्ली के साबिक वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने जनता की अदालत से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकज की NDA हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि मैं इख्तिदार का भूखा नहीं हूँ। इस दौरान केजरीवाल ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS के सरबराह मोहन भागवत से 5 सवालात भी पूछे, जो बुनियादी तौर पर मोदी हुकूमत के तरीक़ाकार और RSS की खामोशी पर मरकूज थे। केजरीवाल ने सवाल में पूछा कि क्या RSS इस बात से मुत्तफिक है कि वज़ीर आज़म CBI और ED का इस्तेमाल करके हुकूमतें गिरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह तरीक़ाकार जमहूरी उसूलों के खिलाफ है और RSS जैसी तंजीम को इस पर मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि मोदी जी ने कई बदउनवान सियासतदानों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया है, क्या RSS इस अमल की हिमायत करती है? उन्होंने BJP के सदर JP नड्डा के हालिया बयान का हवाला देते हुए पूछा कि क्या RSS इस बयान से नाखुश हुई या नहीं। केजरीवाल ने कहा कि क्या 75 साल का उसूल मोदी जी पर लागू होगा या नहीं। केजरीवाल ने कहा कि BJP को RSS की कोख से पैदा होने वाली जमात समझा जाता है और कहा जाता है कि यह RSS की जिम्मेदारी है कि वो BJP को दुरुस्त रास्ते पर चलाए। केजरीवाल ने पूछा कि क्या आप RSS आज की BJP के इक़दामात से मुत्तफिक हैं और क्या आपने कभी मोदी जी से उन सब गलत कामों के बारे में बात की है। इसी के साथ आज की खबरों का इख्तिताम होता है। कल फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।